Now today we discuss about the LC oscillator and the device which is used to convert a converter actually. इसलिए हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, सर्किट लेके चल रहे थे. Device which is used to convert DC into AC. Device which is used to convert DC into AC, known as oscillator. A simple LC circuit behave as an oscillator. और वही सर्किट यहाँ बनाया गया और उसकी वर्किंग के लिए मैंने डायग्राम बनाए हैं. दो तरीके से वर्किंग समझाएंगे, एक ऊपर वाले से और ये नीचे फाइल बने हैं उससे. जौन सा आपको अच्छा लगे वो आप याद रखें. तो एलसी ऑसिलेटर है, ये एलसी सर्किट लगाया गया है, वेरिएबल कैपेसिटर है. तो वर्किंग लेके चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल K2 ऑफ K1 क्लोज. When K1 close, charging start. Charging start. Capacitor will be charged. When capacitor fully charged, energy is stored inside the capacitor. That is half CV square in the form of electric field. Electrical energy हो जाएगी उसके अंदर. Whole energy is stored inside the capacitor in the form of electric field, or it is known as electrical energy. Here, the total energy is stored inside the capacitor, that is electrical energy. UE लिखा हुआ है. Fully charged हो गया, current is zero. Charge maximum, current minimum. Now after that, when capacitor fully charged, K1 off, K2 close. K1 off कर दिया, K2 क्लोज कर दिया. जब K2 क्लोज करेंगे, डिस्चार्जिंग स्टार्ट. चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. प्रोसेस गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली. आफ्टर सम टाइम, एनर्जी इक्वली शेयर्ड, half electrical and half magnetic. The process going on. After some time, capacitor fully discharged. Charge minimum, current become maximum, and whole energy is stored inside the inductor in the form of magnetic field, or it is known as magnetic energy. The whole energy is stored inside the inductor in the form of magnetic field, or it is known as magnetic energy. Here, then again current decreases, recharging starts. कैपेसिटर की रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. और रिचार्ज कौन करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि सर्किट तो ऑफ है. तो इसको रिचार्ज कौन करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो पोलरिटी चेंज होना स्टार्ट हो गई. जो प्लेट पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव होना स्टार्ट, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होना स्टार्ट. एनर्जी जो मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज होके फिर दोनों में शेयर कर दी, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक. करंट डिक्रीज हो रही है, चार्ज बढ़ रहा है. आफ्टर सम टाइम, करंट बिकम जीरो, मिनिमम, charge become maximum, whole energy is stored inside the capacitor again in the form of electric field, that is half CV square. और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है that is half Li square, magnetic energy in the form of magnetic field. Now then again the process change. Again charge decreases, current increases, और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो चुकी है. पहले ऐसे थी, अब यूं स्टार्ट होगी. पहले ये थी, अब ऐसे हो गई. अगेन एनर्जी इक्वली शेयर्ड बिटवीन मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक. हियर नाउ देन आफ्टर सम टाइम, चार्ज बिकम जीरो. चार्ज मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा. Whole energy is stored inside the inductor in the form of magnetic energy. Now then, current decreases.
charge increases. Again, energy equally shared between electric as well as magnetic. Again new cycle start, फिर यही से same cycle फिर start हो गया. That is the working of LC oscillator. If L and C are the ideal, अगर L और C आइडियल हैं तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे. Undamped oscillations of resonating frequency, that is known as natural frequency here. नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के मिलेंगे. तो वर्किंग की दोबारा देखो फटाफट, फिर हम लोग एक और इजी तरीका है उससे समझा देंगे. ना केबल क्लोज, K2 ऑफ, चार्जिंग स्टार्ट. Capsule become fully charged. Whole energy is stored inside the capacitor in the form of electric field, or that is known as electrical energy. Or energy is stored. At that time, magnetic energy will be zero. Current minimum and charge will be maximum. Charge decrease होना start, current increase होना start. Energy equally shared between electric and magnetic. यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होना स्टार्ट, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट, और एक टाइम ऐसा आएगा दोनों इक्वली शेयर हो जाएगा. अगले में क्या बताया गया? कैप्सूल फुल्ली डिस्चार्ज्ड. होल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. सारी एनर्जी मैट फील्ड में आ गया. इस टाइम करंट मैक्सिमम होगा और चार्ज मिनिमम होगा. एंड देन करंट डिक्रीज होना स्टार्ट. मैग्नेटिक एनर्जी फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ देर बाद दोनों बराबर एनर्जी में आ जाएंगे. चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो गया, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. अगली प्रोसेस में करंट मिनिमम हो जाएगा और चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन पोलरिटी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये क्लोज है, ये ऑफ है. तो इसको चार्ज कौन करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ चार्ज करेगा. और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट होता है अप्लाइड के. जो पॉजिटिव प्लेट थी उसको नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव करना स्टार्ट. अगेन चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट. फिर दोबारा से एनर्जी इक्वली शेयर होगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक एनर्जी. फिर चार्ज मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगी. सारी एनर्जी दोबारा से फिर इंडक्टर के अंदर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. फिर वही करंट कम होना स्टार्ट, चार्ज बढ़ना स्टार्ट, अगेन इक्वली शेयर. अगली प्रोसेस फिर यही से स्टार्ट हो जाएगी. सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक एंड प्रोसेस गोइंग. और अगर ये आइडियल सर्किट है तो वी गेट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस. अगर ये आपको टफ लग रहा है तो एक बहुत इजी तरीका है ये भी. लो केबल क्लोज, K2 ऑफ, चार्जिंग स्टार्ट. चार्ज मैक्सिमम हो गया, यानी कि होल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, दैट इज हाफ CV स्क्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आफ्टर दैट कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज्ड. होल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, सो चार्ज विल बी मिनिमम, करंट विल बी मैक्सिमम. अब करंट मैक्सिमम हो गया, चार्ज मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम हो गया. सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर के पास पहुंच जाएगी, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. एंड देन अगेन कैपेसिटर रिचार्ज बाय द इंडक्टर. रिचार्ज करेगा, पोलरिटी चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है. जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव. तो सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर, इसलिए चार्ज मैक्सिमम हो गया. अगेन कैपेसिटर डिस्चार्ज बाय द इंडक्टर. करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, पहले ऐसे करंट जा रही थी, अब यू जाना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो. अगेन चार्ज मैक्सिमम, इसका मतलब सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब तो पोलरिटी फिर चेंज हो गया, क्योंकि जब रिचार्ज होगा, रिचार्ज फिर कौन करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ. फिर पोलरिटी चेंज कर देगा जो पहले वाली थी,
अब पहले वाली इसके लिए ये होगी, फिर पोलरिटी चेंज होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नई साइकिल स्टार्ट हो चुकी, प्रोसेस गोइंग। तो दो तरीके हमने आपको सिखाई, दो तरीके से आप इसको सिखा सकते, समझा सकते हो, समझ सकते हो। और अगर सब कुछ आइडियल है, वी गेट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू गोस टू 1/2 पाई रूट LC। और इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का बेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ LC ऑसिलेटर, एक ही न्यूमेरिकल है उसके ऊपर, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके कुछ पार्ट तो पूछे गए हैं 2 नंबर 3 नंबर में, और पूरा कभी नहीं पूछा गया है। और इसके कई सारे पार्ट है, इसके 5 पार्ट्स हैं, अगर पूरा आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, लेकिन अब तक पूरे पूछे नहीं गए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को स्टेटमेंट सुने, एन LC सर्किट containing 20 millihenry inductor and 50 microfarad capacitor and an initial charge of 10 millicoulomb. Resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed be t equals to 0. पहला पार्ट, what is the total energy stored initially? ठीक, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा, what is the natural frequency of the circuit? थर्ड पार्ट, at what time the energy shared equally at what time is the energy stored completely electrical and completely magnetic? अगला पार्ट, at what time is the total energy shared equally between inductor and capacitor? अगला पार्ट, if a resistance is inserted, if the resistance is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as a heat? अब देखो दोबारा इसको लेके चलना है हमको, न्यूमेरिकल को धीरे धीरे और एक एक स्टेप करते चलना। क्या क्या दिया है दोबारा सुनो स्टेटमेंट, एन LC सर्किट containing a 20 millihenry inductor, 20 millihenry inductor and 50 microfarad capacitor. और रेजिस्टेंस सर्किट का 0 है, कोई रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व नहीं। इनिशियल चार्ज 10 मिलीकूलम्ब है, 10 मिलीकूलम्ब। और अब पहला पार्ट, एक एक पार्ट पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली? आपको पता है कि टोटल पहले, सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होता था, तो एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? कैपेसिटर के अंदर। तो आपको पता है फॉर्मूला एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर। अब V दिया नहीं है, Q goes to CV, V goes to Q by C, तो हाफ Q स्क्वायर by C हो गया। Q हमें पता है 10 मिलीकूलम्ब, और कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है 50 माइक्रोफैरड है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जूल आंसर आएगा। पहला पार्ट हो गया, जो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो इनिशियल एनर्जी 1 जूल होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी क्योंकि आपको वर्किंग में पता है कि सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ करता है। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। और अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहे हैं हम आपके लिए। व्हाट इज द
natural frequency of the circuit. What is the natural frequency of the circuit? तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें. एल दिया हुआ 20 मिली हेनरी, 50 माइक्रो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 159.1. के आसपास ये बनेगा. दो पार्ट सॉल्व हो गए और अब थर्ड पार्ट. 5 पार्ट्स हैं, 5. तो अब थर्ड पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं. एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड कंप्लीटली मैग्नेटिक. ओके, तो कब कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगी? जब चार्ज मैक्सिमम होगा. व्हेन चार्ज विल बी मैक्सिमम, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल. व्हेन चार्ज मिनिमम, कंप्लीटली मैग्नेटिक. तो आपको Q इक्वल्स टू Q नॉट cos ओमेगा t और Q नॉट cos 2 पाई अपॉन t इंटू t. Q इक्वल्स टू Q नॉट हो जाना चाहिए. Q इक्वल्स टू Q नॉट हो जाना चाहिए. और ऐसा कब मिलेगा? जब t इक्वल्स टू 0, t by 2, 3t by 2 एंड सो ऑन. इन प्लेसेस पर आपको कंप्लीटली क्लियर 0, t by 2, 3t, एक और मिलेगा बीच में t, 3t by 2 एंड सो ऑन. आप ये वैल्यू पुट करते चले जाते हो. अगर हम 0 पुट कर दें, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी q नॉट मिल गई. t by 2 पुट कर दो, t से t कैंसिल, cos पाई, फिर आपको q नॉट मिल जाएगा. वो माइनस है. जब q नॉट का मतलब ये नहीं है, आपको पता है पोलरिटी चेंज हुआ करती है. पोलरिटी तो चेंज हुआ करती है. तो यहाँ मैक्सिमम का मतलब है प्लस माइनस q नॉट. अब आप t पुट कर दो यहाँ पर, t से t कैंसिल 2 पाई, फिर मैक्सिमम हो जाएगा. 3t by 2 पुट करेंगे, फिर मैक्सिमम मिल जाएगा. तो इसीलिए इन टाइम पर Q इक्वल्स टू Q नॉट मिलेगा. इसीलिए कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी. ये थर्ड पार्ट का, थर्ड में पहला पार्ट था. थर्ड के दो पार्ट थे. ये थर्ड का पहला पार्ट है और इसका इसी का दूसरा पार्ट है कि कंप्लीटली मैग्नेटिक. अभी मैंने आपको बताया कंप्लीटली मैग्नेटिक के लिए चार्ज मिनिमम होना चाहिए, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल के लिए चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए. चार्ज मिनिमम होना चाहिए, यानी कि चार्ज 0 हो जाना चाहिए. यानी Q इक्वल्स टू Q नॉट cos 2 पाई अपॉन t इंटू t और Q शुड बी 0 आना चाहिए. और पता है आपको कि cos 90 0 होता है. cos 90 0 होता है. अगर यहां पर हम t by 4 कर दें, t इक्वल्स टू t by 4, अगर t की जगह t by 4 लगा दें तो देखो क्या मिलेगा. t by 4 रखते ही t से t कैंसिल, पाई बाई 2 आ गया और cos पाई बाई 2 क्या हो गया, 0 हो गया. इसमें t by 4 का आपको मिलेगा. ठीक, 3t by 4 को मिलेगा एंड सो ऑन. तो इन टाइमिंग पर चार्ज मिनिमम हो जाएगा और चार्ज मिनिमम का मतलब है एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक. क्लियर? ये आपका थर्ड पार्ट हो गया. और अब नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, डी पार्ट. तो अब डी पार्ट में लेके चल रहे हैं. डी पार्ट, एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली
between the inductor and capacitor. Between inductor and capacitor equally shared. आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर हो रही थी हाफ q स्क्वायर बाई सी, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? हाफ q नॉट स्क्वायर बाई सी. q नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू. अगर इसको बराबर कर दें हाफ ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज 1/2 हाफ q नॉट स्क्वायर बाई सी कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा? आधी होगी इलेक्ट्रिक तो आधी क्या होगी? मैग्नेटिक. इसीलिए जो एनर्जी स्टोर हो रही थी कैपेसिटर के अंदर, उसको हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, Q नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, उसके बराबर कर रखा है. तो इसलिए इसको हाफ कर दिया. तो यहां से Q क्या मिलेगा? Q नॉट बाई रूट. इट्स Q नॉट बाई रूट. अब जरा इसमें देखो, Q इक्वल्स टू Q नॉट cos 2/20 इंटू Q की जगह क्या हो जाना चाहिए? Q नॉट बाई रूट 2 और Q नॉट cos 2/T इंटू T. तो यहाँ मिलेगा 1/√2 इक्वल्स टू cos 2πT इंटू T. और आपको पता है कि 1/2 रूट जो वैल्यू होती है cos 45 पर हुआ, cos 45. ठीक, इसका मतलब है कि cos, अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं 45 देखना है, डायरेक्ट तो 45 लिख नहीं सकते. cos 2n प्लस 1 π/4 इक्वल्स टू cos 2/T इंटू. अब देखो n, फिर n के 0 1 2 3 एंड सो. अब 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा? cos π/4 यानी 1/√2. 1 पुट कर दो 3 π/4 अगेन 5 π/4 फिर. तो इसलिए 2n प्लस 1 π/4 लिखा गया, क्योंकि अगर केवल π/4 लेके चलो तो एक ही कंडीशन आती है. बहुत सारी कंडीशंस बनानी है तो 2n प्लस 1 π/4 लिख दिया इसको. अब हम उसको इक्वेट करें 2π/T इंटू T इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/4 और स्मॉल t आपको मिलेगा 2n प्लस 1 T/8. अब n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन लिखते चले जाओ. जब n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? T/8. 1 पुट करेंगे तो 3T/8. 2 पुट करेंगे तो 5T/8. तो इन टाइमिंग्स पर एनर्जी इक्वली शेयर्ड हो जाएगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. आपने देखा जो लोग डायग्राम बना रहे थे उसमें इक्वली शेयर्ड लेके चल रहे थे, तो वो ये टाइम होगा. इन टाइमिंग्स पर एनर्जी इक्वली शेयर्ड होगी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. आपने देखा था, हमने कुछ डायग्राम में इक्वली इलेक्ट्रिक और इक्वली मैग्नेटिक की डायग्राम बना के दिखाई थी. तो ये टाइम रहा होगा. और अब इसका लास्ट पार्ट, ई पार्ट. ई पार्ट देखो इसका क्या है. If a resistance is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as a heat? सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं था. अब अगर एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दें तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं. आपके जेब में 100 रुपए और आप एक मेले में गए कि भाई खर्चा करना, 100 रुपए आपको मिले, आपसे जब खर्च कर लो तो आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो? 100. इससे ज्यादा थोड़ी तुम कर लोगे. आपके पास कितना पैसा स्टोर है? 100 रुपीज. तो एनर्जी कितनी स्टोर थी? 1 जूल. इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई. अगर रेजिस्टेंस दाते तो क्या होगा? क्या होगा? जितनी एनर्जी स्टोर है उतनी ही कंज्यूम हो जाएगी. तो कितनी स्टोर है? 1 जूल. आपका 100 रुपए थे, कितना खर्च करोगे आप? 100 रुपए. मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो? 100.
मैक्सिमम कितनी एनर्जी लॉस होगी, 1 जूल। तो जो एनर्जी स्टोर थी वही हीट प्रोड्यूस करेगी, तो लास्ट आंसर है दैट इज 1 जूल। इतनी ही एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, और अगर आया पूरा तो 5 नंबर में आया। एलसी ऑसिलेटर की वर्किंग 3 मार्क्स में आया। ओके